A very good morning, class 12th. The agenda for today's class is a Viva recap for the cations. In your salt, you have one anion and one cation to be done. For the anion, I have already done the Viva course before this. Before that, I did the titration Viva. All the videos for most of the cations and anions, how to do it, has been already uploaded on the channel. So have a look at that, at least before your practicals. For the cation analysis, my advice is also to go through three important videos. One is flame test, the second is common ion effect, and the third is solubility product. These are the key areas which the examiners tend to ask. So please go through KSP, common ion effect and flame test, the concept behind them. Before I begin with the cation analysis, you need to know what are the cations in our syllabus and how are they divided. The cations are divided into different groups, beginning from group 0 up to group 6. The cations in your syllabus are, in the group 0 we have ammonium, in group 1 we have lead, in group 2 you have copper and arsenic. Copper is a transition element, arsenic belongs to group number 15. Group 3 we have aluminium and iron. Iron is a transition element, aluminium belongs to group 13, P block. Fourth group contains nickel and cobalt, zinc and manganese. All of them are the transition elements. Fifth group has got barium, strontium and calcium. All of them are alkaline earth metals belonging to group 2 of the modern periodic table. Last is magnesium, which is also a part of group 2 of the modern periodic table but is separated here. Fine. Now what is the basis of all this? The basis is KSP. That was the reason I wanted you to please go through the video of solubility product. What do you mean by solubility product? बड़ा मुश्किल सा लगता है ये. जैसे ही वर्ड बोलते हैं ना टेंशन हो जाती है. KSP बोलने का मतलब है solubility product और उसका क्या मतलब है? Solubility. तो अगर मैं बोल रही हूँ KSP हाई है मतलब सॉल्ट सॉल्युबल है, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगी. अगर KSP कम है मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब डिसॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब प्रेसिपिटेट होगी. सो योर cation एनालिसिस इज वर्चुअली रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन. हम चाहते हैं प्रेसिपिटेट हो, इसलिए हमने इनकी ग्रुपिंग ऐसे करी है ताकि इनके KSPs सिमिलर इन दैट रेंज. सिमिलर KSP मतलब इन दोनों को सॉल्युबिलिटी इन दोनों की करीब करीब बराबर है, तो इनको प्रेसिपिटेट करना ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. सो दैट्स द बेसिस of grouping the cations into different groups is on the basis of KSP, that is their solubility or their solubility product. Fine. Now, agenda is, the first thing that you should know is कि इसका ना बेटा KSP बहुत हाई है, इसका मतलब highly soluble, तो cannot be precipitated, तो there is no group reagent. So there is another thing which you should know, which is called as the group reagent. ये group reagent क्या होता है? Group का reagent which will help you precipitate the cations. कौन से reagent से ये precipitate होगा, इस बात को हम group reagent कहते हैं. और अगर मैं group reagent की list बनाऊं, तो इसमें there is no group reagent. Please, this is important. अमोनियम कैनॉट बी प्रेसिपिटेटेड, हम उसको गैस अमोनिया की तरह डिटेक्ट करते हैं. आई रिपीट, प्लीज लर्न अप द सॉल्ट एनालिसिस. यू विल अंडरस्टैंड द वाइवा ओनली आफ्टर लर्निंग अप द प्रोसीजर. द नोट्स एंड द फ्लो चार्ट फॉर द सॉल्ट एनालिसिस इज ऑल्सो ऑन माई चैनल. प्लीज टाइप cation analysis notes by Seema Makhijani video, you will reach. Anywhere you get stuck, just write that name, mention Seema Makhijani and the video, you will go to particular videos. So there is no group reagent for group 0 because ammonium salts have a very very high KSP. Coming to group 1. Group 1 में you have lead and the group reagent is dilute HCl. बेटा ये concentrated HCl नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि concentrated HCl में lead forms a complex which is soluble. तो precipitate ही नहीं होगा. अगर precipitate नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा cation है? So you can only use dilute HCl. Actually इसका basis क्या है? Dilute HCl जब हम use करते हैं तो it forms lead chloride which is a white PPT. क्यों white PPT? क्यों हमने ये group reagent किस basis पे बनाते हैं? हम इस basis पे बनाते हैं तो जो salt बने ना
उसका KSP कम होना चाहिए। लेड के सॉल्ट्स में से क्लोराइड सॉल्ट का KSP कम था, तो उसको प्रेसिपिटेट करना आसान था, इसीलिए डाइल्यूट HCl से काम होगा। इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यू कैन नेवर यूज। डन। उसके सिवा ग्रुप रिएजेंट्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी नहीं यूज करते कभी। उसका भी रीजन, हम क्यों नहीं यूज करते सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि आपका लेड अगर होगा तो वो लेड सल्फेट बन जाएगा, बेरियम अगर होगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम अगर होगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, स्ट्रॉन्शियम होगा तो स्ट्रॉन्शियम सल्फेट हो जाएगा, और ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं, तो आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड। नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज करते हम ग्रुप 1 में? नाइट्रिक एसिड इज एन एक्सेलेंट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है, अगर तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट है, उसके साथ नाइट्रिक एसिड है, और तुम ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 4 में, तो यू विल पास H2S गैस। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। जब हम H2S गैस पास करते हैं एंड योर सॉल्यूशन हैज नाइट्रिक एसिड विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको सल्फर का PPT मिल जाता है ग्रुप 2 में, ग्रुप 4 में, जो कि डर्टी वाइट या फिर येलो आ जाता है। तो कंफ्यूजन हो जाती है ना कि कौन सा आयन है। ग्रुप 2 में आपके पास कॉपर और आर्सेनिक है बेटा, ये येलो बनाता है। ग्रुप 4 में निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज है, ये डर्टी वाइट बनाता है। तो अगर डर्टी वाइट या येलो आएगा तो आपको क्या लगेगा कि शायद जिंक है या शायद आर्सेनिक है, पर हुआ क्या, आपने गलती से नाइट्रिक एसिड डाल दिया, और नाइट्रिक एसिड ने H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू सल्फर। फाइन। सो द वाइवा क्वेश्चन इज, व्हाई डोंट वी यूज नाइट्रिक एसिड इन द सॉल्ट एनालिसिस HCl की जगह? व्हाई डोंट वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन द सॉल्ट एनालिसिस HCl की जगह? we will only be using dilute HCl, concentrated भी नहीं। Now moving to group number 3। ग्रुप नंबर 3 में एल्यूमिनियम है और आयरन है। बेटा आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो कलर्ड सॉल्ट है, पेल ग्रीन कलर का। आयरन की सॉल्ट में Fe3+ है और आपका कॉन्फ़िगरेशन है 3D5। कोई सॉल्ट कलर्ड कब होती है? जब उसके पास कॉन्फ़िगरेशन में D1 से लेके D9 होता है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल के कारण कलर होता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो प्लीज रेफर टू द वीडियो ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय सीमा माखीजानी। यू विल अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स एंड द ट्रांजिशन which will lead to the color. So the colored salts are, in your syllabus you have copper ions which is a D9. So this is normally not passed in the practicals. Iron 3+ which is a D5, पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट है। निकल 2+ विच इज अ ब्राइट ग्रीन कलर का सॉल्ट 3D8 है। कोबाल्ट 2+ विच इज अ मरून कलर्ड सॉल्ट विच इज 3D7। मैंगनीज इज ऑल्सो कलर्ड बट द सॉल्ट इज बेबी पिंक कलर। अब ये बेबी पिंक सॉल्ट ना बेटा पता नहीं चलता, क्योंकि वो व्हाइट के साथ ही रखो तो समझ में आएगा, अदरवाइज इतना लाइट पिंक होता है कि वो व्हाइट ही लगता है। तो एट टाइम्स टीचर्स डू गिव दिस सॉल्ट। दिस इज बेबी पिंक ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ 3D5। सो कलर्ड सॉल्ट्स कौन से हैं और क्यों? इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन एंड द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। अब जिंक भी तो डी ब्लॉक है, और जिंक में बेटा 3D10 है। इट हैज फुली फिल्ड डी सबशेल, इसलिए ये कलर्ड नहीं है, ये व्हाइट सॉल्ट्स होते हैं। इज दैट ओके? देयर इज नो स्कोप ऑफ डी ट्रांजिशन। ऑलराइट, नाउ सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रुप रिएजेंट्स अगेन, कमिंग बैक टू इट। ग्रुप 1 नो ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप 2 dilute HCl only, group 1 dilute HCl only, group 2. For group 2 you already have dilute HCl in your solution, you have to pass H2S. So the answer is H2S in the presence of HCl, that is acidic medium. अब acidic medium क्यों चाहिए? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट है। प्लीज रेफर टू दैट वीडियो, मैं ये बात अभी नहीं करा रही हूँ। ग्रुप 3 में यू रिक्वायर दोबारा से OS। आई वुड एडवाइज प्लीज डिस्कार्ड एंड रीस्टार्ट। ग्रुप 3 में यू हैव एल्यूमिनियम एंड आयरन, जिसमें से OS में आपको पहले अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड डालना होता है। प्लीज डिसॉल्व इट एंड देन प्रोसीड। आफ्टर दिस यू हैव टू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
बोथ ऑफ देम अगेन देयर इज अ कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन कैसा होता है, व्हाट इज द कॉमन आयन? तो जवाब है अमोनियम। स्मार्ट क्वेश्चन क्या होता है? स्मार्ट क्वेश्चन होता है इसकी जगह पे इफ आई यूज NaCl प्लस NaOH इज दिस अलाउड? कॉमन आयन तो है पर दिस इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होने के लिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है ही नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सो यू कैन नॉट यूज इट। So this is not advised despite the common ion effect. Common ion effect is only required when you have or is applicable only if there is a weak salt, there is equilibrium involved. तो ये याद रखिएगा। Coming to group number 4. Group number 4 में बेटा फिर से H2S है, लेकिन इस बार क्या है, इसके अंदर H2S है। इसका मतलब H2S is added in the basic medium and the reason for it is again सल्फाइड आयन का concentration आपको ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि KSP for group 4 is higher than KSP for group 2। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब ग्रुप 4 के सॉल्ट्स ज़्यादा सॉल्युबल है, डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट है, इसीलिए सल्फाइड आयन ज़्यादा चाहिए होता है। ग्रुप 2 के सॉल्ट्स कम सॉल्युबल है, KSP कम है, तो इजी टू प्रेसिपिटेट है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है तो आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इजी टू प्रेसिपिटेट है इसलिए सल्फाइड आयन कम से भी चलता है, और उसलिए हम उसके अंदर एसिडिक मीडियम में डालते हैं ताकि कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, H2S क्यों यूज करना है? कोई और गैस क्यों नहीं? ऐसा क्या खास है H2S में? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ली शैक्लियस प्रिंसिपल से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, स्मेलिंग गैस है तो पता लग जाता है रिलीज भी हो रही है कि नहीं। और तीसरा, प्रेसिपिटेट्स डिफरेंट कलर के बनते हैं। ग्रुप 2 में ब्लैक एंड येलो विद H2S, ग्रुप 4 में ब्लैक व्हाइट पफ कलर्ड हो गया ना, तो कलर पीपीटी से तो पता लग जाएगा ना, तो आइडेंटिफिकेशन भी इजी। वो कौन सा एपरेटस है जिसमें H2S बनाया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द किप्स एपरेटस। फाइन, ओके, इसका भी मैं डेमो बाद में दे दूंगी। बट मूविंग अहेड, कमिंग टू ग्रुप 5। ग्रुप 5 में यू हैव 3 केटाइन्स, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। इन तीनों की खासियत ये है बेटा कि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, देयरफॉर ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। दैट्स द रीजन। फ्लेम की एनर्जी इज सफिशिएंट टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन टू द हायर लेवल, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, तो थोड़ी सी एनर्जी जो उसने ली थी वो वापस रिलीज हो जाती है, एंड दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन। इसीलिए वी यूज फ्लेम टेस्ट ऑल्सो एज अ टेस्ट फॉर दिस। पर सिर्फ फ्लेम टेस्ट नहीं करना है, केमिकल टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी है। एक और बात, अगर एनायन सल्फेट आ गया या फॉस्फेट आ गया, तब ग्रुप नंबर 1 यानी लेड एंड ग्रुप नंबर 5 के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैंने बताया ना इनसॉल्युबल होते हैं, वो कभी नहीं दिया जाएगा। लेड के साथ सल्फेट नेवर पॉसिबल, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के साथ सल्फेट नेवर पॉसिबल। तो अगर सल्फेट आया है तो आपको फ्लेम टेस्ट नहीं करना है, डोंट कॉज अ ब्लंडर। सल्फेट नहीं आया है तब आप फ्लेम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मूविंग टू ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 का ग्रुप रिएजेंट है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके साथ हम डालते हैं अमोनियम क्लोराइड, पहले डला हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डला हुआ है पहले, एंड अमोनियम कार्बोनेट भी डला हुआ होता है फॉर ग्रुप 3। ओके, उसके बाद ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, एंड यू गेट अ पीपीटी। इस पॉइंट पे ग्रुप नंबर 5 पर एक बार और जाते हैं। ग्रुप 5 के केटायंस को हमेशा इसी ऑर्डर में टेस्ट किया जाता है। पहले बेरियम को टेस्ट करना है, वो नहीं आएगा तो स्ट्रोंशियम पे जाना है, वो नहीं आएगा तो वो कैल्शियम पे जाना है। ये तो प्रोसीजर हुआ। क्वेश्चन है क्यों? बिकॉज ऑफ KSP। KSP बेरियम सॉल्ट्स का सबसे कम है, देन स्ट्रोंशियम सॉल्ट्स का, देन कैल्शियम सॉल्ट्स का। इसका मतलब इसको प्रेसिपिटेट करना सबसे आसान है। इनफैक्ट बेरियम अगर आपके सॉल्ट में होता है तो वो तीनों का टेस्ट देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसका KSP लो है, इसलिए इसको पहले टेस्ट करके अलग कर। वो नहीं आएगा तो स्ट्रोंशियम के टेस्ट में 5 मिनट रुकिएगा क्योंकि उसकी प्रेसिपिटेशन टेक्स टाइम, उसके बाद नहीं तो कैल्शियम। फाइन, दैट वाज 1। नाउ मूविंग one by one to each of the group for the specific viva questions of the group. So for group 0 ammonium के लिए you have ammonia gas which is to be detected. Just for your information, ammonia gas के molecules hydrogen bonded होते हैं तो उसकी vaporizability कम होती है। Fine, that is just an information.
अब इस गैस को आप नेस्लर्स रिएजेंट से टेस्ट करते हैं। क्या होता है ये नेस्लर्स रिएजेंट? K2HgI4। अब कई बार ना एग्जामिनर बोलता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला लिख दिया है, नाम बोल, तो कैसे करना पड़ेगा? पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट टाइप्स। ये डालने के बाद ब्राउन कलर का पीपीटी आता है विच इज NH2HgOHgI। तो ये फॉर्मूलाज एग्जामिनर पूछ सकता है। हो सकता है शीट में ना लिखवाएं, लेकिन वाइवा में तो पूछ ही सकते हैं ना। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वाइवा विद रिस्पेक्ट टू जो भी चीज़ आप डिटेक्ट करें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या डाल रहे हो, क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पूरी इक्वेशन अगर नहीं भी पता तो वाइवा के लिए रेडी होने के लिए ये नेस्लर्स रिएजेंट फॉर्मूला क्या है, ब्राउन जो बना है फॉर्मूला क्या है, वो मालूम होना चाहिए। फाइन। कमिंग टू ग्रुप 1, लेड के लिए डाइल्यूट HCl डालते हैं, तब आपको PbCl2 मिलता है विच इज द वाइट पीपीटी, और उसके बाद आप उसको हीट करते हो सोल्यूशन को तो वो डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व करने के बाद इसके दो टेस्ट हैं, दोनों में क्या आता है? येलो पीपीटी। तो येलो पीपीटी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो येलो पीपीटी एक है PbI2 और दूसरा है PbCrO4। तो ये दोनों पता होने चाहिए, द फॉर्मूला ऑफ लेड आयोडाइड एंड लेड क्रोमेट। एक स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेड जो है ना दैट इज प्रेसिपिटेटेड इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में आता है तो PbCl2 जो कि वाइट पीपीटी है, ग्रुप 2 में आता है तो PbS जो कि ब्लैक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? वाइट सॉल्ट दिया था, ग्रुप 2 में ब्लैक आ गया, तो बेटा कॉपर तो होने से रहा ना, वाइट सॉल्ट है, तो ये ब्लैक क्यों आया? तो जवाब क्या है? बिकॉज ऑफ PbS। बट PbS इज इन ग्रुप 1, देन हाउ डू यू जस्टिफाई? द रीजन इज PbCl2 का KSP थोड़ा हाई है, मतलब उसको प्रेसिपिटेट करना थोड़ा मुश्किल है। और कई बार क्या होता है, तुम्हारा जो डाइल्यूट HCl है ना वो उतना डाइल्यूट नहीं है, तब क्या होगा? वो सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देगा, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन डाइल्यूट HCl, तो अगर आपका ये डाइल्यूट HCl का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, बना हुआ ठीक नहीं है, तो आपका पीपीटी नहीं आएगा, बहुत कम पीपीटी आएगा। अब आएगा नहीं तो आप ग्रुप 2 में जाओगे, जब ग्रुप 2 में जाओगे तो लेड तो पड़ा है, तो वो ब्लैक दे देगा। इसीलिए ग्रुप 1 में से पूरा प्रेसिपिटेट नहीं होता है तो ग्रुप 2 में चला जाता है, और ग्रुप 2 में यू गेट अ ब्लैक डिस्पाइट वाइट सॉल्ट is because of the presence of lead which could not be precipitated in group 1. Also, lead salts के लिए हमेशा डिस्टिल वाटर यूज़ करना टू प्रिपेयर दी OS, क्योंकि टैप वाटर में वो वाइट बन जाता है, क्योंकि टैप वाटर में भी तो क्लोराइड आयंस होते हैं। इसीलिए लेड सॉल्ट्स के लिए हमेशा डिस्टिल वाटर में ही OS बनाइएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन। कमिंग टू ग्रुप 2, ग्रुप 2 में एक कॉपर है जो कि मैंने कहा कि सॉल्ट कलर्ड होगा, तो चांसेस नहीं होते हैं उसको देने के, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आर्सेनिक की एक स्पेशलिटी है कि उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉस्फेट के कन्फर्मेटरी टेस्ट के साथ होता है, यानी कैनरी येलो वाला। अमोनियम मॉलिब्डेट इसमें भी डाल के कैनरी येलो, इसमें भी डाल के कैनरी येलो। इसका मतलब क्या? आर्सेनिक और फॉस्फेट कभी इकट्ठे नहीं दिए जाते। वाइवा क्वेश्चन क्या है? गिव मी एन आयन एंड अ कैटायन व्हिच हैव सेम कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो जवाब है आर्सेनिक एंड फॉस्फेट, बोथ ऑफ देम गिव यू द कैनरी येलो। कॉपर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर के कन्फर्मेटरी टेस्ट में व्हाट इज द कलर ऑफ पीपीटी? तो जवाब है चॉकलेट ब्राउन। अभी जो चॉकलेट ब्राउन है ना, उसका फॉर्मूला जब पूछ लेते हैं ना तो आपको टेंशन है, उस टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर K4 FeCN6 डालने से ब्राउन आता है, तो इसका IUPAC नेम पहली बात। जवाब पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसमें पोटेशियम आयंस है और ये हेक्सासाइनोफेरेट आयन है, ये बात याद रखना। अब जब आप इसको कॉपर डालते हो तो कॉपर फॉर्म्स अ पीपीटी बाय कंबाइनिंग विद दिस। बेटा इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 2 है, 4 इधर आया 2 उधर गया, कटा, तो फॉर्मूला चॉकलेट ब्राउन का ये हो गया ना। यही रिएजेंट तुम Fe3+ के लिए भी यूज करते हो और जिंक 2+ के लिए यूज करते हो, तो आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। Fe3+ के लिए अगर मैं यूज कर रही हूँ तो क्या होगा? ये रहा Fe3+ और ये रहा K4 का FeCN6 जो पीपीटी बनाएगा, इसकी वैलेंसी 4 है बेटा। इंटरचेंज करूंगी तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 और ये है तुम्हारा प्रशियन ब्लू।
आयरन का कन्फर्मेटरी टेस्ट। जिंक में क्या होता है, जब आप इसको जिंक में डालते हैं तो ये रहे तुम्हारे जिंक आयंस और ये रहा तुम्हारा K4FeCN6 का FeCN6 4-, इंटरचेंज करो तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, विच इज योर ग्रीनिश ब्लू प्रेसिपिटेट। कॉमनली पूछते हैं कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट का बताओ टेस्ट, चॉकलेट ब्राउन, फिर आपको फॉर्मूला पूछेंगे ही ना, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। दिस 3, ये आपका चॉकलेट ब्राउन हुआ, ये प्रशियन ब्लू हुआ, ये ग्रीनिश ब्लू। फाइन। कमिंग टू ग्रुप नंबर 3। पहले ग्रुप नंबर 3 में फेरस के बारे में बात करते हैं। अगर ग्रुप नंबर 3 में वैसे तो आयरन बेटा नहीं देते हैं, बट पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट है तो क्रश करके मिल भी सकता है। फेरस का सॉल्ट भी दिया होता है ना, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने को बोलते हैं 1 to 2 drops एंड हीट इट सो दैट इट कन्वर्ट्स टू फेरिक। नाउ व्हाई डू यू डू दिस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट फेरस गोज टू फेरिक। नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्योंकि इसका अगर हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसका KSP कम है, तो इजी टू प्रेसिपिटेट, इसीलिए हम फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं ताकि KSP कम है तो इट बिकम्स इजी टू प्रेसिपिटेट। दैट्स द ओनली एजेंडा। फाइन। तो बचा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के केस में आपके पास फ्लोटिंग जेली लाइक पीपीटी आता है। बेटा ये फ्लोटिंग होना चाहिए। अगर ये जेली लाइक हो पर फ्लोटिंग नहीं है तब क्या हो जाता है? दैट इंडिकेट्स कि शायद जिंक है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि मैम जेली लाइक तो था तो बहुत सारा फ्लोटिंग नहीं आ रहा था। तब मैं क्या एडवाइस करती हूँ कि आप एक बार ओरिजिनल सोल्यूशन लेकर उसके अंदर K4FeCN6 डाल देना और चेक कर लेना कि ग्रीनिश ब्लू पीपीटी तो नहीं आ रहा। अगर आ जाए इसका मतलब एल्यूमिनियम नहीं है, ये जेली लाइक फ्लोटिंग पीपीटी नहीं है, ये जिंक है। देयर आर सर्टन सॉल्ट्स जहाँ पे थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि हमने जिंक दिया होता है और हमने जिंक दिया होता है और आप एल्यूमिनियम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्रुप 3 में कई बार आ जाता है। सो दिस इज माई एडवाइस टू यू। फाइन। अब ग्रुप 3 में आपका ग्रुप रिएजेंट कौन है? अमोनियम क्लोराइड फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमेशा पहले यही डालना है, ये कॉमन आयन इफेक्ट है। अगर तुमने ये नहीं डाला तो क्या होगा? तब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हुआ। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर OH ज़्यादा हो गया तो हायर ग्रुप में से कोई भी ग्रुप 3 में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई, वो होगी अगर आपने ये नहीं डाला तो आंसर ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड यू विल हैव लार्ज एक्सेस ऑफ OH आयंस, सो हायर ग्रुप कैटायंस कैन गेट प्रेसिपिटेट क्योंकि उनका KSP ओवरकम हो जाएगा। कमिंग टू ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 में यू हैव निकल कोबाल्ट जो कि ब्लैक कलर के पीपीटीज है, एक्वा रिजिया में डिसॉल्व होते हैं। व्हाट इज एक्वा रिजिया? HCl प्लस HNO3 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1 एक्वा रिजिया का फॉर्मूला है। निकल का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है विद DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइन। ये एंट्रेंस में आता है ज़्यादातर, एंड इट गिव्स यू अ रेड रोज कलरेशन इज कॉमनली आस्क्ड। सिमिलरली कोबाल्ट के पीपीटी में अमोनियम थायोसाइनाइड डालते हैं और इसमें आपको ब्लू कलर का कलरेशन आता है। ऑफ कोर्स ये वाइवा में ज़्यादा काम में आता है। जिंक और मैंगनीज, जिंक का मैंने कंफ्यूजन यहाँ पे समझा दिया। मैंगनीज के केस में यू गेट अ बफ पीपीटी। ये बफ पीपीटी क्या होता है? वॉल का कलर दिख रहा है या ये वॉल का कलर दिख रहा है? बेजिश पीचिश कलर, पीचिश पिंक जो कलर होता है या फ्लैश कलर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बफ कलर विच कैन बी डिटेक्टेड। सो for the blue light test you can watch the video, for zinc confirmatory test you can watch the video, nickel cobalt also the video is done, and iron also you can have a look to get a better attention. Now moving to group 5. Group 5 mein you have these three. As I already said, they have a low ionization energy, so you can use the flame test, but the chemical test ke liye you require a group reagent. इस बार group reagent पे ammonium chloride, ये तो बेटा common ion effect के लिए डालना है, ये रिएजेंट चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। अगर आपने ये नहीं डाला तो क्या होगा? कार्बोनेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? मैग्नीशियम ग्रुप 5 में प्रेसिपिटेट हो जाता है।
हमको कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए फॉर ग्रुप 5, दैट इज वाई वी एड अमोनियम क्लोराइड फॉर कॉमन आयन इफेक्ट। विच इज द कॉमन आयन? अमोनियम। ये फिर क्यों डाला है? ये है सबसे टेक्निकल क्वेश्चन जिसके आंसर में दिक्कत आती है। ये इसलिए डाला है कि अगर बेरियम का बाइकार्बोनेट बने, स्ट्रोंशियम का बाइकार्बोनेट बने और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन जाए बाय द एडिशन ऑफ दिस, तो बेटा ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं, तो पीपीटी आएगा ही नहीं। बाइकार्बोनेट नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। बेसिक मीडियम करने से ये बाइकार्बोनेट नहीं बनता और ये कार्बोनेट बनता है ताकि प्रेसिपिटेशन इजी हो जाए। इज द रीजन वाई वी एड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू कन्वर्ट बाइकार्बोनेट्स इनटू कार्बोनेट सो दैट दे कैन इजीली प्रेसिपिटेट। अमोनियम कार्बोनेट, तो आपको कार्बोनेट चाहिए फॉर द ग्रुप रिएजेंट। एक बार पीपीटी आ गया, इस ग्रुप में अगर आपका वाइट पीपीटी आ जाता है तो उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो डिसॉल्व किस में करते हैं? एसिटिक एसिड में। ये पहली बार हमने एसिटिक एसिड यूज किया। क्यों? बिकॉज इट इज अ नॉन इंटरफेयरिंग एसिड। और कोई एसिड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन द टेस्टिंग ऑफ बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, या पीपीटी नहीं बनाएगा, या पीपीटी बनाएगा तो डिसॉल्व नहीं करेगा। इसलिए टू अवॉइड दैट वी यूज अ माइल्ड एसिड which is non-interfering and it can easily dissolve your precipitates of group 5. Is that okay? The point to remember is group 5 में इसी ऑर्डर में डालना है बेटा। ये डालोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ये डालोगे तो बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, और ये डालने से फिर कार्बोनेट ही बनेगा, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी ना। प्लीज फॉलो द ऑर्डर। ये सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड हमेशा सॉलिड होता है। प्लीज शेक इट टू डिसॉल्व बिफोर यू मूव अहेड। नहीं तो क्या होता है, आप अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, शेक तो करते नहीं। जब शेक नहीं करते तो आपको वही पीपीटी दिखने लगता है। इस बात को विशफुल थिंकिंग कहते हैं, क्योंकि आपने डाला आपको वही दिख रहा है खुश, जबकि वो पीपीटी थोड़ी है भाई, तुमने सॉलिड डाला है, पहले इसको डिसॉल्व तो कर लो। जब भी पीपीटी दिखना है पूरे सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन में सिवाय अमोनियम के हमेशा OS यूज होगा। ये बात याद रखिएगा। हमको प्रेसिपिटेट देखना है और वो सोल्यूशन में दिखेगा, सॉलिड में नहीं। सॉलिड सिर्फ हम अमोनियम के लिए यूज करते हैं। फाइन। सो इन दिस यू नीड दिस ऑर्डर टू बी फॉलोड एंड द solubility हैज टू बी डन इन एसिटिक एसिड। मूविंग टू द लास्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ग्रुप रिएजेंट कौन कौन है? अमोनियम क्लोराइड डला हुआ है पहले से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया तुमने, अमोनियम कार्बोनेट भी डाल दिया, नो पीपीटी। अब तुमने डाला सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड यू गेट अ वाइट पीपीटी। एज आई ऑलरेडी सेड, अगर ग्रुप 5 में आप ये भूल जाएंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, कार्बोनेट ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नीशियम यही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो की आंसर फॉर कॉमन आयन इफेक्टर्स, अगर ना किया तो क्या होगा? हायर ग्रुप कैटायंस विल गेट प्रेसिपिटेटेड देयर इटसेल्फ। फाइन। कैटायन एनालिसिस बेटा ऑर्डर से ही करना, बीच में से कुछ मत करना। हमेशा जीरो पहले, नहीं है तो फर्स्ट, नहीं है तो सेकंड, नहीं है तो थर्ड, नहीं है तो फोर्थ, नहीं है तो फिफ्थ। व्हाइट सॉल्ट में कॉपर, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल मत रिपोर्ट करना, दैट इज द ब्लंडर, क्योंकि ये तो कलर्ड सॉल्ट्स। फाइन। आई थिंक दिस शुड बी माई लास्ट वाइवा वीडियो फॉर द year 2021. Blessing each one of you to have an awesome practical examination. Do well in life, stay blessed, stay connected. See you sometime in life. Bye.